اور زندان کہا یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب سر سے چلی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی چھلے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی آیا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تم آیا دھوپ میں تو تھا سجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے داراز کی بڑی آیا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا لم فرصہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی آیا جب رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا کیا کہوں شیر میرے بیردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی اور ہم پہ ہنسی نہ آیا سر سے چلی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا کتنی بے باستی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی نہ آیا جب تیرا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا پٹکتا پانی یاد شبیر میں بےکل ہے برستا پانی یاد شبیر میں بےکل ہے برستا پانی خواہش آپ تھی سیراب کروں اصغر کو خواہش آپ تھی سیراب کروں اصغر کو آپ بل کھاتا رہا ہائے تڑپتا پانی آپ بل کھاتا رہا ہائے تڑپتا پانی یاد شبیر میں بےکل ہے برستا پانی یاد شبیر میں بےکل ہے برستا پانی ضبط عباس کو دیکھو نہ بجھائی پیاسے ضبط عباس کو دیکھو نہ بجھائی پیاسے نہر پہ جا کے بھی لب سے نہ لگایا پانی نہر پہ جا کے بھی لب سے نہ لگایا پانی
یاد صبیر میں بے کل ہے تڑپتا پانی، یاد صبیر میں بے کل ہے تڑپتا پانی۔ آپ اٹھ اٹھ کے ہی تکتا رہا خیمہ فرات، آپ اٹھ اٹھ کے ہی تکتا رہا خیمہ فرات، لب صبیر کو ترسا ہے سسکتا پانی، لب صبیر کو ترستا ہے سسکتا پانی۔ جب سے دیکھا ہے تیرے جسم کے ٹکڑے اس نے، جب سے دیکھا ہے تیرے جسم کے ٹکڑے اس نے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جاتا ہے برستا پانی، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جاتا ہے برستا پانی۔ آدھیاں زور و ستم کی وہ چلائی ہائے، آدھیاں زور و ستم کی وہ چلائی ہائے، منہ میں اصغر کے بھی نہ ڈالا کوئی قطرہ پانی، منہ میں اصغر کے بھی نہ ڈالا کوئی قطرہ پانی۔ آج تک زمین پہ سر ہے پٹکتا پانی، یاد صبیر میں بے کل ہے برستا پانی، یاد صبیر میں بے کل ہے برستا پانی۔ بابا سے بلند سلوات محمد والی محمد۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، بابا سے بلند سلوات۔ محمد والی محمد۔ محمد وآل محمد صلوات۔ رحم الله من قرأ الفاتحة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المقتلبي، مولانا ومقتدانا وهادينا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد، صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، وقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين۔ صلوات پڑھ پر محمد ارباب اعضاء، معبود حقیقی کا ارشاد ہے، دنیا کو تمام تر نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرنے والا خدا جب اپنے خلیل خدا کو، اپنے دوست کو
منصب امامت سے سرفراز کر رہا ہے تو آواز دے رہا ہے. ہم نے ابراہیم کا پہلے امتحان پہ امتحان لیا، فاتح ہوگا اور تمام امتحانات میں ابراہیم کامیاب ہوگا. تب ہم نے آواز دی انی جائلوں کا لکھنا سے امامہ، ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. میں اس کا چکا ہوں کہ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے پہلے بہت سارے منصب ملے، مگر جناب ابراہیم نے کسی منصب کو پانے کے بعد کوئی تمنا اور کوئی آرزو نہیں کی، جبکہ ہر منصب اللہ کا عظیم ترین منصب ہو. خلت، بندگی، نبوت، رسالت، یہ سارے منصب اللہ کے ہیں، خلافت. مگر اللہ نے جتنے منصب تھے سب عطا کیے جناب ابراہیم کو، مگر سارے منصب کے ملنے کے بعد بھی جناب ابراہیم نے ذریت کے لیے کسی منصب کا مطالبہ نہیں کیا. ظاہر ہے کہ نبوت جیسا عظیم منصب ملا تھا تو جناب ابراہیم کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ معبود مجھے نبی بنا رہا ہے تو میری ذریت کو بنائے گا کیسے بنا ہوگا. رسالت جیسا منصب ملا تھا تو جناب ابراہیم کو سوال کرنا چاہیے تھا نا کہ معبود جو رسالت مجھے دے رہا ہے میری ذریت کو دے گا کہ نہیں دے گا. مگر قرآن خاموش ہے، تاریخ ساکت ہے، کوئی آواز نہیں آئی. کسی بھی منصب کے ملنے کے بعد جناب ابراہیم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. اکبر ادھر ہے تو اس طرف جگہ ادھر ہے. ایک سلامات پڑھیے بآوازیں بڑھا. کسی بھی منصب کے ملنے کے بعد جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے ذریت کے لیے کوئی مطالبہ نہیں کیا. مگر قرآن شاہد ہے جب جناب ابراہیم کو اللہ نے امامت کا منصب دیا تو جناب ابراہیم کے اندر ایک تمنا پیدا ہوئی، ایک خواہش، ایک خوف، ایک چاہت، ایک طلب، ایک آرزو، ایک امنگ، ایک جذبہ پیدا ہوا اور فوراً آواز دے دی وہ ضروریت دی اور معبود میری ضروریت میں. دل چاہتا ہے دست ادب جوڑ کر جناب ابراہیم سے سوال کروں، اے ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو اس کے پہلے پروردگار عالم نے بڑے بڑے منصب دیے مگر آپ نے کسی بھی منصب کے لیے ضروریت میں مطالبہ نہیں کیا. مگر جب پروردگار عالم نے کہا ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں تو آپ فوراً ضروریت کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو ممکن ہے جناب ابراہیم آواز نادان، تجھے پتہ نہیں ہے ہمیں اس کے پہلے جتنے منصب ملے تھے وہ سارے منصب وہ تھے کہ جو وقتی طور پر ہمارے پاس رہنے والے تھے. رسالت ملی تھی اب نہیں ہے، خلت ملی تھی اب نہیں ہے، نبوت ملی تھی اب نہیں ہے. توجہ ہے نا، خلت ملی تھی اب نہیں ہے، رسالت ملی تھی اب نہیں ہے، نبوت ملی تھی اب نہیں ہے، خلافت ملی تھی اب نہیں ہے. مگر اللہ اب جس عہدے کو دینے کا وعدہ کر رہا ہے مجھے پتا ہے کہ یہی وہ الہی عہدہ ہے. جب تک کائنات رہے گی تب تک امامت کا سلسلہ اور جو فرما رہے ہیں آپ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر عہد میں منصب نو کوئی نبی نہیں پایا جائے گا، کوئی خلیفہ نہیں پایا جائے گا، کوئی رسول نہیں پایا جائے گا، کوئی خلیل نہیں پایا جائے گا، مگر کوئی زمانہ ہو امام پایا جائے گا. چونکہ مجھے پتا ہے کہ ہر زمانے میں امام رہے گا، لہذا اب میں نے کہا پروردگار و من ذریتی، میں مطالبہ کر کے اپنی تمنا کا اظہار کر رہا ہوں کہ معبود یہ تو مجھے پتا ہے بھائی، دوست کی بات دوست نہ جانے تو کون جانے گا. یہ تو مجھے پتا ہے کہ تو اب جو منصب دے رہا ہے یہ منصب ہمیں بھی دے رہا ہے، ہماری ضروریت کو بھی دے گا. مگر میں مطالبہ اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ منصب قیامت تک رہنے والا ہے لہذا
چاہتا ہوں کہ یہ منصب تیرے کسی بندے کی ذریت میں ہو یا نہ ہو، مگر میری ذریت میں یہ منصب ضرور ہے۔ یہ مطالبہ جناب ابراہیم نے کیا تھا اور پروردگار سے مطالبہ کیا تھا۔ جب اللہ سے مطالبہ کیا تھا تو اب بات دوست کی ہے نا۔ کیسے ممکن ہے کہ دوست کوئی مطالبہ کرے اور دوست اس مطالبے کو پورا نہ کرے؟ کیسے ممکن تھا؟ یاد رکھیں، آج تک امامت نسل ابراہیم میں پائی جاتی ہے۔ آج تک جو امامت ہے وہ نسل ابراہیم میں ہے۔ آپ حیرت میں نہ پڑیے، ابراہیم نہیں ہے، مگر سنیے غور سے، ہم آپ سارا عالم اسلام کس کا امتی ہے؟ پیغمبر کا، حضور کا، سرکار کا، ختمی مرتبت کا۔ ہم سب ان کے امتی، مگر کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں نہیں پتا۔ ہم سب ہیں امتی پیغمبر کے، مگر آج تک عمل کر رہے ہیں سنت ابراہیمی پر۔ ذرا سا توجہ تو فرمائیں، سنت ابراہیمی پر۔ اب ظاہر ہے کہ ساری گفتگو، ہماری نمازیں ابراہیمی نماز، ہمارے سجدے ابراہیمی سجدے، ہمارا حج ابراہیمی حج، نہیں، آپ خاموش بیٹھے ہوئے۔ ہمارا ہر عمل ابراہیمی عمل ہے، ہمارا حج ابراہیمی حج، ہمارا طواف ابراہیمی طواف، ہماری سعی ابراہیمی سعی، ہماری قربانی ابراہیمی قربانی نہیں ہے۔ آپ بڑے خاموش بیٹھے ہوئے۔ چلیے میں آپ کے سامنے عرض کروں، ایک بات بتائیے، ہر برس ذی الحج کے مہینے میں یہ جو قربانیاں پیش کرتا ہے عالم اسلام، یہ کس کی یادگار ہے؟ ہزاروں جانور قربان ہو رہے ہیں، اربوں خربوں، کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ کس کی یاد ہے؟ کیا یہ پیغمبر کی یادگار ہے جو آپ مناتے ہیں؟ بھئی کس کی یادگار ہے؟ تاریخ سے پوچھئے، تاریخ آواز دے گی۔ چونکہ جناب ابراہیم اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو مقام منی میں لے گئے تھے قربان کرنے کے لیے، مگر مصلحت پروردگار دمبا آ گیا، وہ ذبح ہو گیا، ابراہیم بچ گئے، اسماعیل بچ گئے۔ اللہ نے اس یاد کو حج کا رکن قرار دے دیا، یعنی کسی حاجی کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک جناب اسماعیل اور ابراہیم کی قربانی کی یاد نہ بنا لی جائے۔ کسی کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ میں آپ سے ایک سوال کرنے جاتا ہوں، سنو حسینیو، دنیا آپ سے پوچھتی ہے آزاداری کا فائدہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ ذہن میں لے کے جائیے، جواب دینے جا رہا ہوں۔ جناب اسماعیل آئے قربان گاہ میں، لے کے قربان ہوئے نہیں ہوئے نا، بچ گئے۔ جب بچ گئے تو اللہ نے کیا کہا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم کا فدیہ بنایا۔ اصل یہ قربانی نہیں ہے، یہ ذبح عظیم کا فدیہ ہے۔ وہ ذبح عظیم جو ہونے والا ہے اس کا یہ فدیہ ہے، اسماعیل کی قربانی۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تبدیل کر دیا اس قربانی کو ذبح عظیم میں، تو اصل قربانی ہوئی ذبح عظیم کی، یہ ہے فدیہ۔ میں عالم اسلام سے سوال کرتا ہوں، وہ قربانی جو ذبح عظیم کا فدیہ بنی، جب اس کا منانا واجب ہے تو پھر ذبح عظیم کی یاد برپا کرنا یہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اصل قربانی ہے جو امام علی مقام کربلا کے میدان میں پیش کی ہے۔ اور فرمایا آپ نے، رکیے، یہاں ٹھہر کر کے ہم سے ایک سوال ہوتا ہے، کل ایک بات بتائیے، امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہوئے، ہاں شہید ہوئے، کل اگر تاریخ سے پوچھئے، شہادت اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے کہ نہیں؟ چھوٹے بچے میرے ساتھ متوجہ رہے، جوان تو ہیں متوجہ، بزرگ حضرات میرے ساتھ ہیں،
मगर बच्चों अपने ذہن में उतारो, मैं रोजाना अर्ज कर रहा हूं कि मैं कुछ बातें आपके दिलो दिमाग में उतारने की कोशिश कर रहा हूं। हुसैन ने कुर्बानी दी, शहादत दी। शहादत नेमत है कि नहीं? है ना नेमत? आखिरी फर्क पर शहादत नेमत है कि नहीं? नेमत है। तो फिर मौलाना साहब हमसे सवाल करते हैं कि ये बताइए, जब शहादत है नेमत, तो नेमत के हासिल होने पर खुश होना चाहिए कि गम मनाना चाहिए? अब एक सवाल है कि नहीं? शहादत है नेमत, किसी को कोई नेमत मिलती है तो वो खुशी मनाता है कि गमज़दा होता है? जहां जहां मेरी आवाज जा रही हो, खुदा करे कि लोग कान खोल ले इस बात मंजिल पर और सुने मेरी बात। शहादत है नेमत, और जब किसी को कोई नेमत मिलती है तो नेमत के हासिल होने पर खुश हुआ जाता है, गम नहीं मनाया जाता। बात बड़े पते की है और बड़ी दूर की कौड़ी है जी, आसानी से आप गुजर नहीं सकते। जवाब दीजिए इसका। अगर आपसे कोई सड़क पर, चौराहे पर, किसी गली में, किसी जगह रोक करके, किसी मोड़ पर, किसी चौराहे पर, भाई तबलीग करने वाले तो चौराहों पर घूमते रहते हैं, तो ये जो घूमते रहते हैं, अगर आपको किसी मोड़ पर रोक करके आपसे पूछ ले कि आप क्यों गम मनाते हैं, आप क्या जवाब देंगे? हुसैन शहीद हुए इसलिए, और उसने पलट के कह दिया शहादत तो है नेमत, तो नेमत के हासिल होने पर खुश होना चाहिए कि गम मनाना चाहिए? आपके पास कोई जवाब है? क्या जवाब देंगे आप? मैं जवाब दे रहा हूं, ज़हनों में महफूज कर लीजिए और सारी जिंदगी इसे लॉक कर लीजिएगा ताकि महफूज रह जाए। जब आपसे ये कहा जाए कि शहादत है नेमत, नेमत के हासिल होने पर खुश होना चाहिए, गम नहीं मनाना चाहिए, तो फौरन आप रुक करके सवाल कर लीजिएगा कि ये बताइए, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि शहादत है नेमत और नेमत के हासिल होने पर खुश होना चाहिए, मगर इतना जवाब और दे दीजिए कि अगर नेमत मिल जाए तो खुश होना चाहिए, और अगर नेमत न मिले जरा सा बेदार रहिएगा, नेमत न मिले तो गम मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? भाई नेमत हासिल हो तो खुश होना चाहिए। तो अब अकल का तकाजा तो यही है कि अगर नेमत से कोई महरूम रह जाए तो फिर गम मनाना चाहिए। हुसैन को नेमत शहादत कब मिली? आशूरा मुहर्रम को। ठहरिए, इसके पहले का महीना जिलहिज का आशूर, जिलहिज का आशूर, जिलहिज का आशरा, जिलहिज की 10 तारीख। कुरान पढ़िए, अल्लाह जनाबे इब्राहिम को कहते हैं इस्माइल को ले जाओ कुर्बान करो। जनाबे इब्राहिम इस्माइल को लेके आए, मिना के मैदान में लेटा दिया, छुरी हाथ में ली, इस्माइल के गले पर रखी, मसलहत परवरदिगार से दुम्बा आया, इस्माइल बच गए, दुम्बा ज़िबा हुआ, इस्माइल बच गए, दुम्बा ज़िबा हुआ। मुझे एक बात बताइए, इस्माइल को शहादत मिली? जरा समझिए आप, शहादत मिली? नहीं मिली। तो शहादत जैसी नेमत से इस्माइल महरूम हुए कि नहीं? हमने कहा तुम जिलहिज, आशूरा जिलहिज क्यों मनाते हो? कहने लगे चूंकि अल्लाह के नबी का बेटा शहीद होने से बच गया, इसलिए हम उस दिन खुशी मनाते हैं। हमने कहा अजीब बेअक्ली की बातें हैं, शहादत से जो महरूम हो जाए उसकी खुशी मनाते हो, तो जिसे शहादत मिल जाए
नेमत है जाने गिरानी, 2 और 2 4 वाली। आप खुशी क्यों मनाते हैं? जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फर्जंद जनाब इस्माइल शहादत पाने से महरूम रह गए, शहीद नहीं हुए, बच गए। तो शहादत है नेमत, तो अगर नेमत के हासिल होने पर खुश होना चाहिए तो कोई नेमत से महरूम हो जाए तो गम मनाना चाहिए। आलम इस्लाम से हमारा सवाल है, हमसे बाद में कहना कि आप गम क्यों मनाते हैं, आप खुशी क्यों नहीं मनाते। हम उसके पहले वाले महीने में आपसे सवाल करेंगे कि आप खुशी क्यों मनाते हैं, गम क्यों नहीं मनाते। आइए मिलजुल के हम आप फैसला कर लें। इस्माइल को शहादत का दर्जा न मिला तो हुसूल नेमत शहादत से इस्माइल महरूम रह गए। तो पहले 10 ज़िलहिज को आप गम मनाना शुरू कर दीजिए, फिर हम 10 मुहर्रम को खुश होना शुरू कर देंगे। अज़ीज़ान गिरामी, देखिए बिल्कुल सामने सामने की ये बातें हैं। इंसान अगर अकल से काम ले और फिक्र से काम ले तो बातें पहुंचती हैं। जनाब इस्माइल महरूम रहे, ये महरूम नहीं रहे। ये दुनिया समझती है कि इस्माइल शहादत से महरूम हो गए। वो नेमत जो परवरदिगार अपने बंदों को देना चाहता है वो क्या हमारी तरह कंजूस है कि देने का ऐलान करेगा और फिर वापस ले लेगा। उसने वादा किया है और जनाब इब्राहिम ने उस वादे को पूरा किया है। अब ये एक अलग मंजिल थी कि इन्होंने अपने वादे को पूरा किया, बेटे को मख्तल में लाए, लेटाया, छुरी रखी। अब मसलियत परवरदिगार थी, उसने कबूल कर ली कुर्बानी, और कुर्बानी कबूल करने के बाद दुम्बे को भेज करके इस्माइल को बचा लिया। माबूद क्यों बचाया? क्या इसलिए बचाया कि अल्लाह से इब्राहिम सवाल कर चुके हैं, वह बिन ज़ुर्रियती, तवज्जो, हमारी ज़ुर्रियत में। तो चूंकि सिलसिला इमामत इस्माइल की नस्ल से चलने वाला है, लिहाजा हमने जनाब इस्माइल को बचा लिया, कुर्बानी को कबूल कर लिया। तो परवरदिगार ने इस कुर्बानी को कबूल किया, कुर्बानी कबूल हो गई। अब हुआ क्या? दुम्बा आया, दुम्बा ज़िबा हो गया। अल्लाह ने इसको इब्राहिम की सुन्नत बना दिया और आबाद दी। जो भी हाजी हज करने आए पहले वो कुर्बानी, हज करने के बाद कुर्बानी करे तब वापस लौटे। तो यह सुन्नत इब्राहिम बनी कि नहीं बनी? हम उम्मत में हैं मोहम्मद की, मगर अमल कर रहे हैं जनाब इब्राहिम की सुन्नत पर। आगे की मंजिल, अल्लाह ने कहा इब्राहिम तो अपने घर से निकलो और एक ऐसी वादी में जाओ जहां न खाना हो, न पानी हो, न बस्ती हो, न आबादी हो, बेआबो गया सहरा में लेके जाओ। बीवी को भी ले जाओ, बेटे को भी ले जाओ। इब्राहिम को इम्तिहान देना था, खामोश रहे। बेटे और बीवी को लिया, इस्माइल और हाजरा को साथ में लिया, लेकर आ गए मक्के में। मक्के में आने के बाद इब्राहिम का इम्तिहान मक्के में ले आए। ऐसी जगह पर लाए हैं जहां खुद देख रहे हैं न खाना है, न पानी, न बस्ती, न आबादी। लेके आए। अब जब तक जनाब इब्राहिम साथ हैं, हाजरा को भी इत्मीनान, इस्माइल को भी सुकून, मगर हुक्म परवरदिगार हुआ अब इन्हें यही छोड़ो और तुम वापस चले जाओ। तवज्जो, तुम वापस चले जाओ। परवरदिगार ये क्या कर रहा है? हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे हैं। अब इस मंजिल पर अगर जनाब इब्राहिम पलट के कह दे माबूद हर तरह का इम्तिहान गवारा है, मगर प्यारी बेगम साहिबा को छोड़कर जाना यह बर्दाश्त नहीं होगा। इस्माइल जैसे बेटे को छोड़ना, वो भी बेआब हो गया सहरा में, हम ये बारात में बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई तारीख नहीं कहती कि जनाब इब्राहिम ने कोई सवाल किया हो। हुक्म परवरदिगार आया जाओ, तो इब्राहिम ने फौरन बोरिया बिस्तर बांधा निकल लिए, वापस आ गए, छोड़ दिया बीवी बच्चों को। माबूद इब्राहिम वहां है, अब इनका क्या होगा? अब आदमी घबराओ नहीं,
सलवात पढ़ दीजिए बाबा जी। एक बाबा से बुलंद सलवात इरशाद फरमाइए। इब्राहिम मुतमईन है, यहाँ हाजरा है और जनाब इस्माइल है। लक़द सहरा, ऐसे आलम में जनाब इस्माइल पे प्यास का गलबा तारी हुआ। अब आती है मादर गिरामी, मुझे प्यास लग रही है। माँ का दिल था, माँ ने कहा बेटे रुको मैं इंतजाम करती हूँ। अब तारीख से पूछिए, जनाब हाजरा उठी, मश्क ली, पानी की तलाश में निकली। दूर एक सहरा नजर आया, सहरा में एक टीला नजर आया। उन्होंने देखा शायद उस टीले पर पानी हो, यहां से दौड़ के वहां गई। इधर आई तो देखा यहां पानी नहीं है, मगर यहां से उधर देखा तो उनको महसूस हुआ वहां पानी है। यहां से दौड़ के वहां गई, वहां भी पानी नहीं मिला, मगर वहां खड़ी थी तो फिर एहसास हुआ नहीं पानी तो वही है। इधर आ गई, फिर पानी नहीं मिला, मगर यहाँ खड़े खड़े फिर एहसास हो गया पानी उधर है। उधर गई। अब तारीख से पूछिए, 7 मर्तबा पानी की तलाश में जनाबे हाजरा इस्माइल के लिए कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। इब्राहिम को अपने इम्तिहान का सिला कितना बड़ा मिला। अल्लाह ने आवाज दी, इब्राहिम तुम बेआब हो गया सहरा में, अपनी बीवी और बेटे को छोड़ के गए हो। सुनो, तुम्हारी बीवी अपने बेटे के पानी के हुसूल के लिए इधर से उधर उधर से इधर ये जो चक्कर लगा रही है, हम उसके इस अमल को अपने हज का रुकन बना देंगे। अब जो हाजी आएगा उस पर वाजिब होगा वो कभी सफा पे जाए, कभी मरवा पे जाए, कभी सफा पे जाए, कभी मरवा पे जाए। 7 बार जब तक हाजी चक्कर न लगा ले उसका हज पूरा नहीं हो सकता। अब आपने पहचाना जनाब इब्राहिम को सिला मिला कि नहीं मिला, कुर्बानी का मिला सिला। जितने इम्तिहानात जनाब इब्राहिम देते चले गए, अल्लाह ने उसका सिला उनकी जिंदगी में उन्हें अता किया। क्यों न करता? इसलिए कि उसको पता था कि इब्राहिम फकत मोहब्बत का दावा नहीं करता, बल्कि मोहब्बत को मंजिल कमाल तक पहुंचाता, और पहुंचाया। अब ये सिलसिला और आगे बढ़ता रहा। जनाब इब्राहिम इम्तिहान पे इम्तिहान देते रहे। मुझे आज एक मंजिल की तरफ आपको ले जाना है, यहाँ थोड़ी देर के लिए ठहरिए। इम्तिहान पे इम्तिहान दे रहे हैं। मैं आपके सामने अर्ज कर चुका हूँ, खाने काबा में ताकों पर बैठने वाले बुतों का खात्मा किसने किया? इब्राहिम ने। जब इब्राहिम ने बुतों को तोड़ दिया और नमरूद तक शिकायत पहुंची, तो नमरूद ने पूछा कौम वालों से कि यह काम किसका हो सकता है। तो सब ने एक जुमला कहा, मैं यहां तक आपको लाना चाहता था। सब ने एक जुमला कहा, समेअना फतह। हमने सुना है कि एक जवान है, एक जवान है। लफ्ज़ें क्या है कुरान की? समेअना फतह, एक जवान है, उसी ने ये काम किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फतह होता है झूठे खुदाओं का खात्मा करता है। नहीं, आप नहीं पहुंचे, आप नहीं पहुंचे। इसका मतलब ये हुआ कि जो फतह होता है वो झूठे खुदाओं का खात्मा करता है। कुरान ने एक जगह फतह यहाँ इस्तेमाल किया और एक मंजिल पर नबी ने फतह इस्तेमाल किया। तवज्जो, एक मंजिल पर नबी ने फतह की लफ्ज इस्तेमाल की, मगर कब? जब जिब्रील ने आके कसीदा पढ़ा। नहीं पहुंचे आप। जंगे खंदक, जब परवरदिगार ने अली इब्न अबी तालिब के कमाल को देखा तो एक जुमला कहा। क्या कहा? अली की तलवार टूट गई, अली घबराओ नहीं, चूंकि तुम हमारी राह में जिहाद कर रहे हो, लिहाजा जिम्मेदारी हमारी है। परवरदिगार क्या करेगा? जिब्रील से कहा जल्दी से जाओ,
जो हमारे खजाने की तलवार है, जिसका कोई जवाब नहीं है, उस तलवार को ले जाओ, अली के हवाले करो। तो जिब्रील खामोशी से आ जाते, तलवार दे देते, मगर तारीख ने बताया जिब्रील जब तलवार लेकर आए हैं तो जिब्रील खामोशी से नहीं आए, बल्कि कसीदा पढ़ते हुए आए। क्या कसीदा पढ़ा? ला फतह। जो देखिए मेरी मेहनत आप थोड़ा सा स्वागत करने की कोशिश कीजिए। मैं पूरे नतायज को आपके हवाले, बड़ी मेहनत के हवाले कर रहा हूँ, मेहनत के साथ कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपका मुझे साथ चाहिए, इस सुकूत को तोड़ते रहिए ताकि मुझे हौसला मिलता रहे। जिब्रील आए, तलवार ही तो लेना था, खामोशी से आते नबी के पास। मुसलसल आयतों को लाने वाला जिब्रील तलवार भी लाके नबी को दे देता है। नबी अल्लाह थमा दीजिए इनको, अल्लाह ने भेजा है, ये परेशान है। नहीं, जिब्रील आए, आने के बाद कसीदा पढ़ा, और कसीदा भी क्या पढ़ा? ला फतह इल्ला अली, कोई जवान नहीं है सिवाय अली के। अगले जुमले से मुझे कोई काम नहीं है, मुझे इसी लफ्ज से काम है। ला फतह इल्ला अली, कोई जवान नहीं है सिवाय अली के। अजीजाने गिरामी, एक बार कुरान ने फतह की सनद दी नहीं, एक बार अल्लाह ने फतह की सनद दी अली के जद इब्राहिम को, और दोबारा अल्लाह ने ला फतह की सनद दी इब्राहिम की औलाद अली को। दो बार फतह की लफ्ज आई है, दो बार फतह की लफ्ज। मैं पिछली मजलिस का जुमला दोहराने जा रहा हूँ। दो बार फतह की लफ्ज आई है, एक जनाबे इब्राहिम के लिए, एक मौलाए कायनात के लिए, मगर दोनों में फर्क क्या है? फतह वो भी, फतह ये भी। दोनों में फर्क यह है कि इब्राहिम ने भूतों का खात्मा किया तो दोबारा आ गए, दोबारा आ गए, मगर जब इस लापता ने सारे झूठे खुदाओं को लापता किया, आवाज़ें बुलंद नारे सलावत। इस लापता ने जब झूठे खुदाओं को लापता किया, इनका खात्मा किया, तो फिर आज तक काबा गवाह है कि किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वहां झूठे बुतों को लाके बैठाए। अब यहाँ रुकिए, जब इमामत मिलेगी तो परवरदिगार आलम ने ये नहीं कहा कि इब्राहिम हम तुम्हारी नस्ल को, तुम्हारी ज़ुर्रियत को इमामत दे देंगे, नहीं कहा ना। क्या कहा? काला ला यनालो अहदिस ज़ालिमीन, ये ओहदा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा, जालिमों तक नहीं पहुंचेगा, आखिरी फर्क तक मेरे साथ हैं आप। ये नहीं कहा कि नहीं देंगे, ये भी नहीं कहा कि देंगे, फैसला कयामत तक का कर दिया। ये ओहदा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। फतेह मक्का के बाद सरकारे खत्मी मर्तबत अली इब्न अबी तालिब के साथ खाने काबा में आते हैं, और आने के बाद कहते हैं अली एक काम करो, ये जितने बैठे हुए हैं आज इनका खात्मा कर दो, मक्का फतह हो चुका है। तवज्जो, अली इब्न अबी तालिब ने जितने छोटे मोटे ताकों पर बैठे हुए थे सबों को औंधे मुंह गिराया, खत्म हो गए। अब एक बुलंदी पे बैठा हुआ था, अली का कद था कम, उस बुलंदी तक हाथ का पहुंचना दुश्वार था। नबी करीम करीब आए, और आने के बाद नबी ने कहा अली क्या बात है? कि या नबी अल्लाह, वो बहुत बुलंदी पर है, मैं वहां तक कैसे पहुंचूं? तो रिसालत ने आवाज दी, अली घबराओ नहीं, मैं खड़ा हूं ना, मेरे दोस्त पर अपना कदम रखो। कौन कह रहा है? नबी, मेरे दोस्त पर कदम रखो। अली थोड़ी देर के लिए खामोश। नबी ने आवाज दी, अली ये बताओ हुक्म बड़ा है कि अदब? तवज्जो फरमाइएगा, हुक्म बड़ा है
कि आदब, अली समझ गए इस वक्त नबी का हुक्म है, लिहाजा अब अदब की जरूरत नहीं है। समझो, अली इब्न अबी तालिब गए, रसूल के दोष पर अपने कदमों को रखा, नबी के दोष पर अपने कदमों को रखा। जितनी आसानी से आप सुनना चाहे सुन लीजिए, मगर जुमला में आपकी समातों को तो फतन हदिया करने जा रहा हूं। अली ने रसूल के दोष पर अपने कदम को रखा, पैर को रखा। अजीजों, पैगंबर का जिस्म नहीं है, बल्कि जिसमें रिसालत पर मोहरे रिसालत है। तवज्जो फरमाइएगा, जिसमें नबुव्वत पर मोहरे रिसालत है। तो अली ने दोषे रिसालत पे कदम नहीं रखा, मोहरे रिसालत पर। मोहरे रिसालत, कुरान के ऊपर कुरान ने अपना पैर रखा। रखने के बाद खड़े हुए, जल्दी से तोड़ना शुरू किया। नबी ने सवाल किया, ए अली, तोड़ने के पहले एक बात बताओ। कहा जी नबी अल्लाह, चले ये बताओ इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हो, अपने आप को कहाँ पे पा रहे हो। अली आवाज दे रहे हैं, या नबी अल्लाह, इस वक्त इतनी बुलंदी पर हूँ, अगर चाहूँ तो हाथों से सितारे, चांद सूरज सितारे अपने हाथों से मस कर लूं, तोड़ दूं, सितारे तोड़ लूं। अगर चाहूँ, इतनी बुलंदी पर हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं याद करूँ, ए वली अल्लाह, इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। सितारा बुलंदी पर है और आप इतनी बुलंदी पर पहुंच गए, सबूत के लिए सही एक सितारा तोड़ लीजिए। इसलिए कि बहुत से वो हैं जो आपकी अजमतों को देख कर भी नहीं मानेंगे। तो आप कहिएगा हम सितारे तक पहुंच गए, कोई न मानेगा। एक सितारा तक कम से कम सबूत के तौर पे तोड़ लीजिए, ताकि जब कोई कहे कि नहीं आप सितारों तक नहीं पहुंचे थे, तो सितारा दिखा दीजिएगा, ताकि बने बनाए सितारे असली सितारे को देख तो ले कि आपने वाकई तोड़ा। ए मेरे मौला के चाहने वालों, अजब नहीं मेरा मौला आवाज दे, ओ नादान, मैं चाहता तो एक नहीं सारे सितारे तोड़ सकता था, फिर क्यों नहीं तोड़ा। कहा तोड़ा इसलिए नहीं है कि मोहताज नहीं हूँ सितारे को, मेरी गरज है, मुझे सितारे की जरूरत सितारे को हमारी जरूरत नहीं है, सितारे को हमको सितारे की जरूरत नहीं है, सितारे को हमारी जरूरत है। और हमें जब जरूरत होगी सितारा तो खुद हमारी चौखट पे उतर आएगा, लिहाजा हमें जरूरत नहीं है। अली इब्न अबी तालिब दोषे रिसालत पर चढ़े और उन्होंने बुतों का खात्मा किया। वहां और भी बहुत से अफराद खड़े थे, बहुत से अफराद और भी खड़े थे। कौन कौन खड़ा था अब मुझे नाम लेने की जरूरत ही नहीं, क्या जरूरत है नाम लेने की, बस इतना कह देना काफी है कि बहुत से लोग नबी के इधर उधर खड़े थे, मगर नबी ने एक शर्त लगाई, कहा आज इनको वो तोड़ेगा जिसने पहले इनकी परस्तिश न की हो। जो फरमाइए जाने मोहतरम, तारीख का जुमला है ये, आज इन्हें वो तोड़ेगा जिसने इनकी परस्तिश न की हो, इनके आगे कभी सजदा न किया हो, सर न झुकाया हो, कभी खम न हुए हो, वही तोड़ेगा। अब तारीख से पूछिए, जैसे ही नबी ने ये शर्त रखी, कोई आगे बढ़ा, कोई आगे बढ़ा नहीं बढ़ा। ये रुके हुए कदम बता रहे हैं, हम में कोई ऐसा नहीं है जिसने पहले से परस्तिश। नबी ये शर्त क्यों लगा रहे हैं आप, तवज्जो, ये शर्त क्यों लगा रहे हैं आप। अजब नहीं, नबी करीम आवाज दे, शर्त इसलिए लगा रहे हैं कि अगर इनको कह दिया कि आप तोड़िए और ये उसके करीब पहुंचे, तोड़ने के पहले उसको देखने के बाद कहीं इनके दिल में ये जज्बा मोहब्बत उजागर हो गया, इससे तोड़े कैसे, कल तक तो सर झुकाते थे, तो मंसूबा ही पे पानी फिर जाएगा। लिहाजा मेरे मौला ने कहा हम आगे बढ़ते हैं, ये अली आगे नहीं बढ़ रहे हैं,
بلکہ علی اپنے ایمان کی دلیل دنیا کے حوالے کر رہے ہیں. سنو، جتنے نبی کے ساتھی ہیں یہ سب کے سب کبھی نہ کبھی بت پرستی کر چکے ہیں، اور ان بتوں کا توڑنا بت پرستوں کا کام نہیں ہے، بت شکن کا کام ہے. اور ساری کائنات میں بس ایک ہی بت شکن ہے جسے علی کہتے ہیں. علی بن ابی طالب نے بتوں کو توڑا. یہ جملہ وہ توڑے جو بت شکن نہ ہو، بت شکن ہو، وہ نہ توڑے جو بت پرست رہ چکا ہو. مجھے ایک بات بتائیے، بت پرستی شرک ہے کہ نہیں؟ شرک ہے کہ نہیں؟ بت پرستی شرک ہے کہ نہیں؟ ہے. بت پرستی شرک ہے. شرک ظلم ہے کہ نہیں؟ ان قرآن کے حوالے سے میں بات کروں، قرآن میں پروردگار عالم نے واضح لفظوں میں کہہ دیا ان الشرک لظلم عظیم. صرف ظلم ہی نہیں ہے، شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. کون؟ مشرک جو بت پرست رہا ہو، وہ بت پرست رہا ہو. جناب ابراہیم نے جب کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو اللہ نے کیا بات دی؟ لا ینالُ عَیدِ الظَّالِمِین، یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. ساری کائنات میں اگر ابراہیمی امامت کا کوئی مستحق ہے تو کوئی بت پرست، نہ وہ بت تراش ہو سکتا نہ بت پرست ہو سکتا، بس وہی ہو سکتا ہے جو بت شکنی کی سزا حاصل کر سکتا. وہی ہے ذمہ دار امامت، وہی ہے منصب امامت کا حقدار، وہی ہے حقیقی امام. اور بس عزیزان محترم، انشاءاللہ کل کی آخری مجلس ہوگی شب عاشور کے حوالے سے، اور کچھ باتیں عرض کروں گا کیونکہ کل مصائب کا بہرحال حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ، اور آپ حضرات حق کے گریہ ادا کریں گے. یہ ایام وہ چل رہے ہیں کہ جس میں مصائب زیادہ پڑنا ہے. میں آپ کو لے آیا اس منزل تک. اللہ نے کہا تھا لا ینال عید الظالمین، عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا. عزیزان گرامی، یہ بڑا عظیم منصب ہے پروردگار کا، جو ہر کس و ناکس کو نہیں ملتا. وہ اسے ملتا ہے جو جوان ہوتا ہے. اب تلاش کیجیے، علی ہے جوان، علی ہے لافتہ. تو لافتہ کے گھر میں آپ کو کوئی لافتہ اور نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا؟ نہیں عزیزان گرامی، اس گھرانے میں تو جتنے ہیں سب لافتہ ہیں، سب جوان ہیں، سب مرد ہیں، سب بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والے ہیں. مگر ایک خصوصیت اس جوان کو خاص حاصل ہے جسے لافتہ نے اپنے پروردگار سے دعاؤں میں مانگا تھا. وہ شخصیت کون سی ہے؟ اسے ہم اور آپ غازی عباس کے نام سے کہتے ہیں. غازی عباس یہ تاریخ عالم و عالم کی وہ عظیم شخصیت ہے جسے علی جیسے مشکل کشا نے کربلا کے حسین کی مشکل کشائی کے لیے اللہ سے دعا کر کے مانگا. اور جب مانگا ہے علی نے، تو ظاہر ہے کہ علی کا فریضہ ہے کہ علی مانگ رہا ہے تو علی کی مراد اور خواہش کو پوری کرنا. اللہ نے پوری کی. اللہ نے عباس جیسی نعمت سے میرے مولا کو سرفراز کیا. مل گئے عباس. اب میں ایک بات عرض کر کے آگے منزل کو طے کرتا ہوں. کربلا میں جتنے شہید ہوئے، ہر شہید کو آپ شہید کہتے ہیں، مگر مولا عباس کو آپ شہید عباس نہیں کہتے. لیکن غور کیجئے گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ روئیں گے. علی اکبر کو آپ شہید کہتے ہیں، قاسم کو شہید کہتے ہیں، اور محمد کو آپ شہید کہتے ہیں، اصحاب و انصار کو آپ شہید کہتے ہیں. حد یہ ہے کہ خود سرکار سید الشہداء کو بھی آپ شہید کہتے ہیں. مگر مولا عباس کا جب آپ نام لیتے ہیں
تو آپ شہید عباس نہیں کہتے، آپ غازی عباس کہتے ہیں۔ سب غازی عباس کے ماتمدار بیٹھے ہوئے، غازی عباس کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے۔ کیوں کہتے ہیں غازی عباس؟ اس لیے کہتے ہیں کہ غازی اس مرد میدان کو کہتے ہیں جو اپنے سامنے آنے والی فوج کو پسپا کر کے اپنی فوج کے پرچم کو بلندی عطا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں، غور نہیں فرمایا آپ نے؟ غازی اسے کہتے ہیں جو باطل کی حکومت کا خاتمہ کر کے حق کا پرچم بلند کر دے۔ جملہ دور ہونے کے لیے کافی ہوگا، ہاتھ قلم ہو تو ہو جائے مگر پرچم نہ چوکے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آمد گریہ بلند ہوئی آپ کی، غازی عباس کے ماتمداروں۔ عباس کی عظمتوں کا آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو سنیے، جب مدینے سے یہ قافلہ روانہ ہوا کربلا کی طرف، شہزادی زینب نے اپنے ماجائے حسین کو بلایا اور بلا کر ایک سوال کیا، میرے ماجائے قافلے میں سب نظر آ رہے ہیں مگر مجھے میرا عباس دکھائی نہیں دے رہا۔ آقا حسین نے ایک جملہ کہا، حسین کہتے ہیں زینب گھبراؤ نہیں، عباس ہے ساتھ میں۔ کہاں ہے؟ مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے؟ سنو گے رونے والوں، خدا کرے میرا یہ جملہ پہنچ جائے اب تک تاکہ دلوں کو چوٹ لگے۔ حسین کہتے ہیں زینب عباس قافلے کے آگے آگے چل رہا ہے، قافلے کے آگے آگے چل رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، زینب کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور زینب نے ذرا سخت لہجے میں کہا، کیا کہا؟ عباس آگے آگے چل رہا ہے۔ عباس کی یہ مجال کہ آقا کے آگے آگے چلے تو حسین نے فوراً کہا، میری بہن زینب پریشان نہ ہو، سنو عباس آگے آگے اس لیے چل رہا ہے کہ راستے میں آگے جب کوئی ادھر سے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو عباس ہاتھوں کو جوڑ کے آنے والے سے کہتا، بھائی راستہ بنا دو، ادھر سے زینب آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ سمجھا آپ نے غازی عباس کی عظمت کو آپ نے پہچانا؟ غازی عباس کو زینب کا کتنا خیال، ہٹ جاؤ زینب آ رہی ہے، ہٹ جاؤ سیدانیاں آ رہی ہیں۔ یہ ہے غازی عباس۔ اب اگلی منزل ملاحظہ فرمائیے، قافلہ کربلا میں وارد ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے فرات کے کنارے خیمے لگا دیے گئے اور خیمے لگانے کے بعد غازی عباس جوش شجاعت میں فرات کے کنارے خیموں کے تلایا پھر رہے ہیں اور ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا یزیدی فوج قدم آگے بڑھا رہی ہے، غازی کو جلال آیا، جھک کے عباس نے تلوار کی نوک سے زمین پر ایک نشان کھینچا اور نشان کھینچنے کے بعد کہا، جس کے اندر دم ہو وہ اس لکیر کو، اس نشان کو عبور کر کے دکھائے۔ رونے والوں سنو گے، اس منظر کو حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دیکھنے کے بعد حسین نے کچھ کہا نہیں۔ حسین خاموشی سے خیمے میں گئے اور جا کر کے کہتے ہیں، بہن زینب غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہا عباس کو جلال آ گیا، ابھی دوسری محرم ہے، ذہن میں رکھیے گا دوسری محرم ہے، عباس کو جلال آ گیا۔ کہا ہوا کیا؟ کہا یزید کی فوج کا حکم ہے کہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لیے جائیں۔ عباس نے تلوار نکال لی ہے کہ جس کی مجال ہو آ کے تنابیں کھول دے۔ میں نے خیمے نصب کر دیے۔ زینب سمجھ گئی یہ تو قیامت کے پہلے قیامت کے آثار ہیں۔ بس زینب نے ایک جملہ کہا، زینب کہتی ہے فضا ذرا جل جاؤ، نہیں اس کے پہلے کی منزل سنو رونے والوں، رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہوگا۔ زینب کہتی ہے تو بھیا آپ نے روکا کیوں نہیں؟ بھیا آپ نے روکا کیوں نہیں؟ ماجائے آپ نے روکا کیوں نہیں؟ تو حسین کہتے ہیں زینب تمہیں پتا ہے
अभी मदीने में जब भैया हसन के जनाजे पर तीर बरसाए जा रहे थे और अब्बास को जलाल आया था और अब्बास का हाथ तलवार के कब्जे में पहुंचा और अब्बास तलवार निकालना चाहते थे, तो मैंने बढ़ के अब्बास की कलाई को थाम के कहा था, अब्बास ये मदीना है, करबला नहीं है। ज़ैनब अब तो करबला आ गई, अब मैं रोकूं कैसे रोकूं अपने आका को, अपने शेर को, अपने भाई को, अपने वफादार को। आसान नहीं है। अजीज़ान गिरामी, ज़ैनब का सहारा लिया हुसैन ने। ज़ैनब ने फिज़ा से कहा, एक जुमला जाके अब्बास से कह दो, रोने के लिए जुमला ले रहा हूँ। एक जुमला कहा, जाके कह दो अब्बास से, फिज़ा ज़ैनब कह रही है या तो तुम खैमे में आ जाओ सुना जुमला आपने, या तो तुम खैमे में आ जाओ या ज़ैनब मख्तल में आ जाए। ये जुमले का पहुंचना था, अब्बास ने तलवार नियाम में रखी, जिन हाथों से तनाबे कसी थी उन्हीं हाथों से डोरी खोली। अल्लाह अकबर। मंजिल आगे बढ़ती गई, यहाँ तक के वो मंजर आया जिसे शबे आशूर कहा जाता है। शबे आशूर रिवायतों में मिलता है, हर बीबी अपने अपने बच्चों को खैमों में लिए हुए समझा रही है, पहला रही है, आशूर के लिए आमादा कर रही है। सब समझा रहे हैं, कल कोताही नहीं होना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकले, खैमों का जायजा लिया। रोने वालों सुनो, इसी असना में हुसैन अपनी शरीकतुल हुसैन बहन माजाई ज़ैनब के पास पहुंचे। तो ज़ैनब ने एक जुमला कहा। ज़ैनब कहती है, भैया क्या तुमने अब्बास को देखा? हुसैन कहते हैं, ज़ैनब क्या हुआ? हुसैन बहुत देर से अब्बास अपनी तलवार को हाथ में लिए हुए और मुसलसल उसमें साइकिल कर रहा है, उसकी धार को तेज कर रहा है, और जैसे जैसे तलवार की धार को तेज करते जाता है अब्बास कभी तलवार को चूमता है और चूमने के बाद कहता है, कल करबला में खैबर का मारेगा तुझे सर करना है। अब्बास तलवार को बोसा दे रहा है, अब्बास तलवार को साइकिल कर रहा है। हुसैन समझ गए कल खैर नहीं है, कयामत के पहले कयामत आ जाएगी। रोने वालों जरा कलेजे की ताकतों को इकट्ठा करो। हुसैन ने एक मर्तबा कहा, फिज़ा जरा जाओ अब्बास को बुला के लाओ। अब्बास आए, हुसैन ने कहा, अब्बास तलवार कहाँ है? आका अभी लाता हूँ। दौड़ के गए, तलवार को लाए। वो तलवार जिसे मुद्दतों से बैठ के साइकिल कर रहे थे अब्बास, हुसैन ने उस तलवार को अब्बास के हाथों से लिया, घुटने पे मारा, तलवार फूट गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रोते आओ और बाबे आज़म। ये मैं कोताही न करना, मैं पूरी मेहनत के साथ मसाइल का हल कर रहा हूँ। तलवार फूट गई, तलवार नहीं टूटी, गाजी अब्बास की आस टूट गई। सुबह आशूर आई, रोने वालों सुबह आशूर, और शहीद जाता रहा। मख्तल में हुसैन जाते थे, लाशों को उठाते थे, खैमे में वापस लाते थे। जो आया हुसैन से इजाजत लेने के लिए इजाजत मिल गई, मगर रिवायत कहती है कि अली का शेर दिल बेटा अब्बास बार बार आता है, झूठा लेता है। मुझे इजाजत दे दीजिए। अब्बास कैसे इजाजत दे, हुसैन कैसे इजाजत दे, जानते हैं? अब्बास के सीने में शजाअत करवट ले रही है, अभी कयामत आ जाएगी। अब्बास हुसैन के पास खड़े थे, इसी असना में हुसैन ने कहा, अब्बास जरा खैमे का रुख करो। अब्बास ने खैमे का रुख किया, कहा सुनो कुछ आवाज आ रही है। अब्बास ने गौर किया, कहते हैं हाँ आवाज तो आ रही है। हाँ अब्बास क्या आवाज आ रही है? छोटे छोटे बच्चे हैं जो आवाज दे रहे हैं, हाय प्यार, हाय प्यार, हुसैन ने
तरीका है। अब्बास जाओ और पानी की कोई सबील हो तो कर दो। अब्बास आए, सकीना को आवाज दी, सकीना जरा मशकीदा लाओ। नन्ही सकीना मशकीदा लाई, मशकिला के अब्बास के हवाले किया। नहीं, जो लोग अब तक नहीं रो सके, अब तक जो नहीं रो सके, सकीना की प्यास का वास्ता इस जुमले का इस्तेमाल कर लो। अब्बास ने जब सकीना से मश्क मांगी, अब नारी कहती है कि सकीना ने मशकीजा उठाया और एक मर्तबा मशकीजे के दहाने को चूमा और चूमने के बाद कहा, मुझे यकीन हो गया चूंकि चचा ने मंगवाया है तो अब पानी जरूर आएगा, अब हमारी प्यास बुझ जाएगी। अब कोई बस की आवाज नहीं बुलंद करेगा। लीजिए और बाबे अब्बास ने मशकीजा उठाया, चंद कदम आगे बढ़े, हुसैन ने आलम हवाले किया। अब्बास चंद कदम और आगे बढ़े, एक मर्तबा आका हुसैन कहते हैं अब्बास जरा वापस आओ। अब्बास वापस आए, परचम जो अब्बास को दिया था वो बुलंद था। हुसैन कहते हैं अब्बास जरा परचम को नीचे करो। अब्बास ने आलम झुकाया, अब जो आलम झुका तो अब तारीख कहती है उस परचम के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। गाजी अब्बास के परचम पर कुछ लिखा था। हुसैन ने पढ़कर जो लिखा था उसे काट दिया, उसके नीचे कुछ और लिख दिया। मुझे नहीं पता कि आप तक ये मसाइल कैसे पहुंचेगा, मगर इस्तकबाल कीजिए। वही फिजा खड़ी थी, फिजा कहती है शहजादी गजब हो गया। अब क्या हुआ? आका ने परचम को झुकाया, कुछ लिखा था उसे काट दिया, नीचे कुछ और लिख दिया। फिजा कहती है आका को बुलाओ। हुसैन आ गए, मेरे माँ जाए तुम्हें मेरे हक का वास्ता, जल्द बताओ क्या लिखा था, तुमने नीचे क्या लिखा? हुसैन कहते हैं ये मेरे जद का आलम था, ये मेरे बाबा का आलम था, इस पर अब तक लिखा हुआ था नज़रुम मिनल्लाह है व फतहुन करीब, मैंने उसे काट दिया, नीचे लिख दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करना तो इस एहसास के साथ मातम करना। आज हम उसका मातम कर रहे हैं जिसके दोनों बाजू दरिया पे कलम हो गए, उसका मातम करना है। पूरी ताकत के साथ मातम का हक अदा करना आजादार हो। रो चुके आप, मगर मैं मसाइब में कोताही नहीं करना चाहता, मसाइब में कमी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ पूरी ताकत के साथ मसाइब का हक अदा किया जाए और आप गिरिए का हक अदा करें। अब्बास चले, अब्बास आगे बढ़े। तारीख कहती है इधर अब्बास खैमे से बाहर निकले, उधर नन्ही सकीना ने छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया और आबादी बच्चों अपने अपने कूजों को अपने हाथों में उठा लो, अपने अपने कूजों को अपने हाथों में उठा लो। बच्चों ने कूजे उठाए, सकीना ने बच्चों को इकट्ठा किया, दरे खैमा पे आके खड़ी हो गई। बच्चों घबराओ नहीं, चूंकि चचा मशकीदा लेके गए हैं तो पानी जरूर आएगा, अभी पानी आएगा, अभी तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। इधर सकीना दरे खैमा पे खड़ी है और अब तारीख कहती है कि अब्बास मख्तल की तरफ बढ़ रहे तेजी के साथ। हुसैन खड़े, हुसैन मंजर देख रहे हैं। तारीख कहती है अब्बास जैसे जैसे नशेर के करीब बढ़ते रहे, तेजी के साथ अलम आगे बढ़ता रहा। अब्बास को देखकर हुसैन तकबीर की आवाज बुलंद करते रहे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब्बास नशेर में उतरे, दरिया में गए,
मश्क सकीना को भरा। भरने के बाद अब्बास लौटे। अब जो लौटे, जैसे ही हुसैन को आलम दिखाई दिया, हुसैन की तकबीर पलट गई, बदल गई। अब हुसैन ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रोने वालों, अब जैसे ही अलम बुलंद हुआ, तेजी के साथ अलम खैमे की तरफ आ रहा है। जब अलम को खैमे की तरफ आते हुए हुसैन ने देखा तो फिर तकबीर बदल गई। शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह मतलब समझे। अब अब्बास ने मस्कीजा भर लिया। अब तेजी के साथ चले, बच्चों तक पानी लेकर सकीना की प्यास बुझाने के लिए। मगर रिवायत कहती है अभी चंद कदम आगे बढ़े थे कि अब हुसैन के मंजर ने देख, हुसैन की आंखों ने मंजर देखा। दाहिनी तरफ से अलम बाई तरफ चला गया। हुसैन ने आवाज़ परवरदिगार मेरे दाहिने बाजू की मातम करते और वाले मातम करो गाजी अब्बास का। थोड़ी देर के बाद बाई तरफ से 75 मीटर के आया। हुसैन ने आवाज़ परवरदिगार मेरे बाएं बाजू की खड़ा हो गया। अब्बास ने मशकीज़े को दांतों से संभाला, दांतों से संभाला। घोड़े को एड़ लगाई, पूरी कुव्वत को समेट के अब्बास ने चाहा कि जल्दी से खैमे तक पानी पहुंचा दिया जाए। इसी असना में एक बलून आगे बढ़ा, एक तीर का बाण में बस के सकीना पर लगा, बस चली पानी बह गया। पानी बहा, जब पानी नहीं बहा, अब्बास की हसरत टूट गई, अब्बास की आस टूट गई। अब तारीख ने कहा कि अब्बास ने जो घोड़ा बड़ी तेजी के साथ खैमे की तरफ बढ़ा रहे थे, घोड़े का रुख मोड़ दिया। मौला ये क्या? आप खैमे में नहीं जा सकता, इसलिए कि अगर मैं खैमे में पहुंचूंगा तो सकीना दरे खैमा में इंतजार कर रही होगी। अब मैं खैमे में नहीं जा सकता, घोड़े को मोड़ा। सुनो, इस्तेमाल करो और बात ऐसा, थोड़ी देर और मुझे पढ़ने दो साहब। रोने वालों, पता नहीं अगले बरस कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं रहेगा। जो इस बरस थे बहुत से नहीं रहे। हमें मौला ने ये शरफ दिया है, हम आज 8 मुहर्रम की मजलिस में शरीक है। अब्बास ने घोड़े को मोड़ा वापस बख्तर की तरफ। मौला ने मोड़ा, अब क्या करेंगे खैमे में जाके? सकीना को क्या मुंह दिखाएंगे? वादा करके आए थे पानी लेके आ रहे हैं, पानी तो बह गया, दोनों बाजू कटा हो चुके हैं। रोने वालों, एक मरतबा अब्बास ने जैसे ही रुख मोड़ा, असलिया समझे अब्बास वापस हम पर हमला करने आ रहे हैं। रोएंगे आप इंशाल्लाह, रोएंगे और बहुत देर तक रोएंगे। बस आखिरी मंजिल में मजलिस है। असलिया समझे अब्बास पलट कर हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। इसी असला में एक मलऊन ने सिल्ले कमान में तीर छोड़ा। आप जो सनसनाता हुआ तीर आया अब्बास की आंखों में। मकसद है, दुश्मनों का हमला है। अब्बास की आंख में तीर में बस जरा एहसास तो करो, अगर मट्टी का एक कंकर जरा साहब में पड़ जाए, एक तिनका पड़ जाए, कितनी बेचैनी होती है जब तक आंख से वो कंकर ही निकल नहीं जाती। आंख बड़ी नाजुक चीज है ना, जरा अब्बास की मजलूमियत का अंदाजा लगाओ। आंख में तीर है और बाजू कलम हो चुके हैं। अब्बास तीर निकाल भी नहीं सकता।
अब्बास तीर निकाल नहीं सकते। अब तारीख कहती है गाजी अब्बास ने एक मर्तबा घोड़े पर झुक कर दोनों घुटनों को इकट्ठा किया। आखिरी मंजर मेरी तरफ देखते रहना, मेरी तरफ देखो और बाबियाजा, फिर क्या होगा। अब्बास ने घोड़े पर झुककर दोनों घुटनों को करीब किया, सर को झुकाया, झुकाकर घुटने से तीर को निकाला। तीर को निकल गया, एक बलून आगे बढ़ा, सर में गोश लगाया, सर बढ़ गया। पंडित कहाँ पता हो रहा है, सर में गोश लगा। आखिरी जुमला अब्बास ने आवाज दी, आका खुदा का सलाम आखिर लो। इधर हुसैन खैमे से दौड़े, आवाज दी अकबर करीब मक्तल में हुसैन आए। रिवायत कहती है हुसैन मक्तल में जाते वक्त कभी जमीन पर झुके, फिर उठे, चल कदम आगे बढ़े, फिर झुके, फिर उठे, फिर चल कदम आगे बढ़े। जब मालूम है हुसैन झुक क्यों रहे, हुसैन ने जुमला कहा था, मेरे लाल, मेरे वफादार, अल-आन इनकसर ज़हरी। अब्बास तुम्हारे मरने से हुसैन की कमर टूट गई, हुसैन की कमर टूट गई। हम समझ रहे थे कि हुसैन की कमर टूट गई, इसलिए हुसैन मक्तल में जाते हुए बार बार झुक रहा है, मगर ये वजह नहीं थी। तारीख ने बताया हुसैन चंद कदम आगे बढ़े तो कहीं अब्बास का दायरा बाजू नजर आया, और आगे बढ़े तो ये बाजू नजर आया। झुक झुक के गाजी के उठाया, अपने दामन में रखा और गाजी के पास पहुंचे। हाथों से बोले अलग को बुलंदी दी, अलग हो गया। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, खत्म हो गई मजलिस। आखिरी जुमला रोने वालों, अब तारीख कहती है हुसैन जब गाजी के करीब पहुंचे, किसी भाई को ये मंजर ना दिखलाए। बराबर का 32 बरस का भाई, जवान भाई अब्बास, दोनों बाजू को कलम कराए हुए फुरात के किनारे पड़ा हुआ है। अब्बास करीब के करीब हुसैन पहुंचे, आवाज देते हुसैन, अब्बास तेरा गरीब आका आ गया, अब्बास तेरा हुसैन आ गया, कोई ख्वाहिश हो तो बता। अब्बास आवाज देते आका बस एक ख्वाहिश है, जब दुनिया में आए थे तो पहले आपका चेहरा देखा था, जब जा रहे हैं तो आका चाहते आपकी ज़ियारत करें। हुसैन ने कहा मैं सामने खड़ा हूँ, क्यों नहीं ज़ियारत करते। आवाज दी आका, आंख में तीर पैबस था, खून उतर आया। हुसैन ने आवाज के दामन से खून को साफ किया। अब्बास ने हाथ खोली, आका सलाम आके हुसैन गिर गए, वापस आ, वापस आ, सकीना, या सकीना, या सकीना,
प्यास से सकीना की बचाई ना गई हो गए बाजू पलम मासू बचाई ना गई जाने क्या कह गया भाई से अलमदार जरी जाने क्या कह गया भाई से अलमदार लाश का मज़ार से बहुत दूर सकीना का मज़ार आज तक बाप से बेटी की जुदाई न गई हो गए बाजू कदम मस्त बचाए बाजुएटा में एक तीर ऐसा लगा बाजुएटा में एक तीर था टूट न सका लाश असगर की कलेजे लाश अकबर पे ये लैला ने रो रो कर लाश अकबर पे लैला ने रो रो कर आए किस्मत तेरी शादी भी रजाई न गई हो गए बाजू कलम इश्क बचाई न गई या सकीना या अब्बास 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 या सकीना या सकीना अब्बास 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 या सकीना
सकीना या सकीना पीछे हो जाओ क्या सकीना पीछे हो जाओ, पीछे से जान भाई, या सकीना 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 जबरदा सर से चुनी मैं सदा देती रही तू लाया गाजी जबरदा सर से चुनी मैं सदा देती रही तू लाया गाजी आले इमरान का और जिंदान का ये बहन कैद हुई सुनाया जबरदा सर से छिली मैं सदा देती रही तू नाया गाजी जबरदा सर से छिली मैं सदा देती रही तू नाया गाजी उसको लग जाए। जबरदा सर से छिली मैं सदा देती रही तू नाया गाजी जबरदा सर से छिली मैं सदा देती रही तू नाया गाजी आले इमरान का और जिंदान का ये बहन कैद हुई नाया गाजी जबरदा सर से छिली मैं सदा देती रही तू नाया गाजी जबरदा सर से छिली मैं सदा देती रही तू नाया गाजी जबरदा सर से छिली मैं सदा देती रही तू नाया गाजी तेरी खुशबू सुन रहे मेरे बाजू ना कटे सारे मछली मगर हो ना सका मेरे बाजू है जुदा बे है नशे लगी तू नाया गाजी जबरदा सर से छिली मैं सदा देती रही तू नाया गाजी जबरदा सर से छिली मैं सदा देती रही तू नाया गाजी जबरदा सर से छिली मैं सदा देती रही तू नाया गाजी को पानी ना मिले तेरी खुशबू ना कटे चाहे मछली नाची दे मगर हो ना सका मेरे बाजू है जुदा
से आबाद सागर नहीं समझे बहन को खुदा गई शाम हरम पर आलम सादे के लिए से मिलने के लिए आ गए रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से जवाब देंगे सकीना को छुड़ा लो के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो मुश्किल में मुझे बात बुला लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से
सकीना को छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा मैं हूँ मुश्किल में मुझे बुला लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा 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 लो बाबा मांगते ऊंट से बाबा मैं कई बार गिरी पर बिछी मेरी पोशाक जली को जिंदा के अंधेरा से निकालो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो 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 बाबा मांगते ऊंट से बाबा मैं कई बार गिरी बिछी को मेरी पोशाक जली को जिंदा के अंधेरों से निकालो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा मैं हूँ मुश्किल में मुझे बात बुला लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा 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 लो बाबा नींद आती नहीं सोने से मेरे कानों से खून से अपने सीने पे घड़ी पल को सुना लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा 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 लो बाबा शिमरी से मांगू जो पानी तो झिड़कते इसमें गिरा जिके नादी को दो फूट मंगा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा 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 लो बाबा के रस्सियों से
छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना देंगे छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा भागते ऊंट से बाबा के मार गिरी मेरी पुकार जली को जिंदा के अंधेरों से निकालो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना देके छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा दिया नहीं सोने से लगता है जो कर मेरे कानों से खुद से है अपने सीने पे घड़ी घर को सुना लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा मत करो मातम करते रहो साथ में को छुड़ा लो बाबा एक साथ के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा मेरे कातिल मुझे बोलने से मना उठा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा के रस्सियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा अज़मतों की मालिका बाजार में 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 आए मैं जब मेरे बाजार में अज़मतों की मालिका 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 बाजार में शाम वालों ने सताया समय को दाम की बेटी घटू में की मालिका
की मालिका बाजार में, अजमतों 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 की मालिका बाजार में। एक बुद्ध बाप ने ऐसा बना, एक सहाबी पीट कर कहता रहा, बाजार में अजमतों की मालिका बाजार में, अजमतों की मालिका बाजार में, अजमतों की मालिका बाजार में। कमरे बनी हाशिम मौला, 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 कमरे बनी हाशिम मौला। कल्बी अलम ये पूछा था, कल्बी अलम ये पूछा था, अब भी अलम ये पूछा है, कल्बी अलम ये पूछा था, अब भी अलम ये पूछा है, कल भी फलक को छूता था, अब भी फलक को छूता है, अब भी फलक को छूता है, अब भी फलक को छूता है। मेरा कर है ये कहता तालीमा तालीमा, मेरे बनी हाशिम मौला, 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 मेरे बनी हाशिम मौला। या सकीना, या सकीना, या सकीना, या सकीना, या सकीना, दिल अब्बास, या सकीना, या अब्बास, या गुलफज़िल 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 अब्बास, या सकीना, या अब्बास,
السلام عليك يا عبد الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس وعنيس النفوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الزمان الأمان 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 السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الزب الجهان عزم الله تعالى فرجك وصل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته